हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय आरएचपी पर। यहाँ हम कवर करते हैं डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत में इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके कवर किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, Who wrote the book Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman, released in February 2026? कौन है ऑथर इस बुक के? विजय गोयल। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज द बुक इन February 26 at Dr. Ambedkar International Center. The book Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman was authored by Vijay Goyal and published by Gandhi Smriti and Darshan Samiti. The book is a tribute to Atal Bihari Vajpayee, a Bharat Ratna awardee and former Prime Minister of India. It highlights key milestones of his tenure, including Pokhran 2 and the launch of Delhi Metro Project. तो बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन एंड ऑथर है विजय गोयल और पब्लिश किया है गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। नेक्स्ट है, Which scheme was implemented in Delhi to encourage citizens to help seriously injured road accident victims within the golden hour? क्या स्कीम का नाम है? राहवीर स्कीम। राहवीर स्कीम। दिल्ली Chief Minister Rekha Gupta announced the implementation of the Rahavir scheme in February 26. The scheme is initiative of Ministry of Road Transport and Highways. क्या है स्कीम? A person helping an accident victim within the golden hour will receive 25,000 and a certificate. Maximum 25,000 reward is given per incident even if multiple victims are saved. The scheme supports Good Samaritan provisions under the Motor Vehicles Amendment Act. तो स्कीम का नाम है राहवीर स्कीम, लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम and will receive 25,000 and a certificate. Next है, which airport was ranked 5th busiest in the Asia Pacific region in 25 as per the OAG data? कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक 5th busiest airport in Asia Pacific in 2025 as per the OAG. Delhi airport recorded 46.18 million one-way departing seats in 25 based on scheduled airline seat supply. In 2019, pre-COVID, Delhi airport was ranked 9th in the Asia Pacific region. Delhi airport surpassed Singapore Changi Airport, Suvarnabhumi Airport and Incheon International Airport in 2025 rankings. तो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है? दिल्ली। वॉज रैंक 5th बिजिएस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन 2025. नेक्स्ट है, Which country signed an agreement with India to launch DigiLocker pilot project? कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है टू लॉन्च डिजी-लॉकर पायलट प्रोजेक्ट? कंट्री का नाम है केन्या। इंडिया एंड केन्या साइन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू लॉन्च DigiLocker pilot project. The agreement was signed on the sidelines of AI Impact Summit. कहाँ पे हुआ है? जो कि न्यू दिल्ली। DigiLocker enables secure digital storage and real-time verification of official documents. और केन्या का कैपिटल है नायरोबी एंड करेंसी है शिलोंग। स्टैटिक पार्ट ये है स्टैटिक पार्ट। नेक्स्ट है, Where is the 16th edition of India-US Special Forces Exercise Vajra Pahar 2026 being held? कहाँ पे होने वाला है? हिमाचल प्रदेश। एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड एडिशन है 16th edition. The 16th edition exercise Vajra Pahar is being held in Himachal Pradesh from 23 February to 15 March 2026. The 15th edition 2024 was held in USA. Next है,
Which Argentinian player won his maiden ATP Tour title by clinching the ATP 500 Rio Open? नाम है टॉमस मार्टिन इचेवेरी. won his maiden ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर टाइटल एट रियो ओपन ब्राजील, डिफीटिंग अलेजांड्रो टाबिलो. The Rio Open marked his first ATP 500 trophy and his 100th tour level match win. With this victory, he jumped 18 places to reach world number 33 in ATP rankings. ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट है, which ministry is organizing him connect during the world sustainable development summit 2026? सबसे पहले जानते हैं कहाँ पे हुआ है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. ये हुआ है न्यू दिल्ली. मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज ऑर्गेनाइजिंग हिम कनेक्ट फ्रॉम 25 to 27 February इन न्यू दिल्ली. तो आंसर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. The event is being held as a part of World Sustainable Development Summit organized by Energy and Resources Institute. कौन से इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है? द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. हिम कनेक्ट विल शोकेस 24+ टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज. तो हिम कनेक्ट कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि हुआ है इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट है, which AI driven biotech product data portal was launched on 40 Foundation Day of डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो पोर्टल का नाम है सुजविका. यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड सुजविका ऑन 40th फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इस्टेब्लिशमेंट कब का है? 1986. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि DBT. सुजविका इज an AI-driven trade statistics digital intelligence platform providing structured biotechnology import data. Next है, where was the 7th All India Conference of Government Railway Police Chiefs held? कहाँ पे हुआ है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. 7th All India Conference of Government Railway Police Chiefs हुआ है इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. The conference was presided over Director General RPF Sonali Mishra. Chairman cum CEO Railway Board Satish Kumar also attend the event. Next है, on which foundation year celebration did the Employee State Insurance Corporation begin its celebration in 2026? ESI का फाउंडेशन डे कौन सा है? 75th फाउंडेशन ईयर. द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC बिगिन इट्स 75th फाउंडेशन ईयर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली. ESIC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1952. ईयर कौन सा है? 1952. Today, ESIC serves over 15 crore beneficiaries through 166 hospitals, 17 medical colleges and nearly 1600 dispensaries. Union Minister Mansukh Mandaviya addressed the event. A commemorative coin and coffee table book were released to mark ESIC at the rate 75. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ESIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट, अब हम स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे. फिर पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WADA. क्या है WADA? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा. नेक्स्ट है, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट.
कौन सा बटरफ्लाई सेंचुरी है? अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन केरला। पहले इसका नाम था अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी रीनेम किया है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। नेक्स्ट है द लोज़ार फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो इट इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। लोज़ार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अल्जेरिया? तो कैपिटल है अल्जीयर्स एंड करेंसी है दिनार। तो ये थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।